Formula is not required. What you required is just logic and only logic. You are not able to clear CSAT is not because of your lack of ability, but it's because of your wrong approach. तो guys एग्जाम में एक सेट स्ट्रैटेजी के साथ जाइए, एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा वहां पे। अगर आपने एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो आप ये मान के चलिए कि आपको अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठना पड़ेगा फिर। तो गाइस क्वेश्चंस को ऐसे सोचना शुरू करिए और उसके लिए आपको थॉट पता होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे का थॉट क्या है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है गाइस। CSAT is not about calculation, it's all about clarity. Hello everyone, so in this video we are going to discuss how to clear quantitative aptitude, the most scary part of CSAT, without using a formula. See everyone, let me tell you, बहुत सारे students ऐसे हैं, those who are actually very much scared of mathematics, right? जैसे ही वो कोई formula देखते हैं तो वो डर जाते हैं। So let me tell you, in this video we are going to discuss how to use logics to clear CSAT. See guys, you know what? Formula is not required. What you required is just logic and only logic. And you know what? Logic works in paper 1 also and logic works in paper 2 also. So moreover, you can say logic works in overall UPSC, right? And formula, guys, let me tell you, UPSC doesn't want you to learn formula, and IAS officer need not to be a mathematician also, let me tell you. But an IAS officer needs to be a troubleshooter, guys, right? So friends, you have to be troubleshooter rather than you have to be a formula person. Fine. The problem is what? Because the quantitative aptitude part is the worst part, you can say, of CSAT, is the most scary part of CSAT. And why it is scary? बिकॉज अभी स्कूल लेवल से आपकी फाउंडेशन है नहीं मैथ्स की, तो यह फाउंडेशन है नहीं तो शायद कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फाउंडेशन थोड़ी सी वीक है, आप ये कह सकते हैं। वीक इसलिए बिकॉज आपने स्कूल टाइम से ज़्यादा फोकस किया नहीं। तो अभी क्या होता है कि व्हेन यू सी नंबर्स और व्हेन यू सी कैलकुलेशंस तो यू जस्ट स्केयर्ड, आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा, राइट? एंड गाइस लेट मी टेल यू, कंफ्यूजन जो है इस बात पे रहता है कि अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना भी चाहें तो हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस तो एक जैसे लगते हैं जब मैथ शुरू होता है तो, या जब कैलकुलेशन शुरू होता है तो, ठीक? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा फॉर्मूला और कैलकुलेशंस, नंबर्स, ये सारी चीज़ें सोचते रह जाते हैं। बट एक्चुअली लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज नॉट एक्चुअली फॉर्मूला बेस्ड प्रिपरेशन, दिस इज एक्चुअली द लैंग्वेज बेस्ड प्रिपरेशन. You have to think about the language first. You have to think about the logic behind that first. And guys, let me tell you, your CSAT, you are not able to clear CSAT is not because of your lack of ability, but it's because of your wrong approach, right? Why? Because most of the students think कि यार अगर हम ये फॉर्मूला याद कर लें, अगर हम ये फॉर्मूला याद कर लें और ऐसे अप्लाई कर दें और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला होता है, तो गाइस लेट मी टेल यू, कोई फॉर्मूला नहीं होता। एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक होता है। इट्स ऑल अबाउट लॉजिक रादर देन द फॉर्मूला, राइट? देखिए जरा, इफ आई टॉक अबाउट द अप्रोच, राइट? सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला फ्री अप्रोच, गाइस, राइट? यू नो व्हाट, सपोज दैट इफ यू रीड अ क्वेश्चन लाइक दिस कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है? अब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, दैट इज ओके, but just think behind it कि A can do a piece of work in 10 days means what? A can do the 100% work in 10 days. It means in one day he will do 10% of the work. Correct? So while reading the question, if you can think like this कि A can do 10% of the work in one day. So that becomes a easier thing, right? Similarly, let me tell you, अगर आपसे बात की जा रही है कि let's say the percentage profit is 20%. Suppose that the question says the percentage profit is 20%, right? So guys, think about it. Percentage profit is 20% or 20% profit. What is the meaning of 20% profit? So 20% profit means an article is sold at 120% of the cost price, which means SP is equal to 120% of the CP. That's it. And guys, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम डेली लाइफ में प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इस टाइप की चीजें करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है ये आपके लिए बहुत टफ है। प्रॉब्लम कहां आती है? जब प्रॉब्लम आती है जब आप एक्स वाई के टर्म्स में सोचना शुरू करते हैं कि लेट्स अज्यूम दिस एज एक्स, दिस एज वाई, एंड एक इक्वेशन बनाते हैं
तो प्रॉब्लम ये है कि रियल लाइफ में हम एक्स वाई के टर्म्स में कभी बात करते नहीं, रियल लाइफ में हम नंबर्स के टर्म्स में बात करते हैं, राइट? 120, 140 समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो चीजें आपके लिए ज्यादा ईजी होंगी, ठीक है? एंड मैं आपको बताऊं, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले यू प्लीज थिंक अबाउट इट, राइट? थिंक फर्स्ट एंड देन कैलकुलेट, राइट? लॉजिक इज ऑलवेज 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 बिगर देन एनी फॉर्मूला गाइस, let me tell you, right? Okay, after that, now why formula free approach works? सबसे पहले इस बात को समझिए कि why formula free approach works. So everyone, formula free approach works because logic is very much faster than your memory, right? जितनी देर में आप रिकॉल करेंगे उससे पहले आप चीजों को सोच ले जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप यूपीएससी सीसैट के क्वेश्चंस देखें, क्वांट के भी क्वेश्चंस देखें, तो 70% क्वेश्चंस जो है ना ऐसे हैं जो कि आप सिर्फ लॉजिक पे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप बैठिए मेरे साथ, आई विल शो यू 70% ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ द लॉजिक्स ओनली, नो फॉर्मूला इज नीडेड फॉर दैट गाइस। यस, ओके। एंड यू नो व्हाट, होता क्या है कि जब आप मेमोरी कुछ मेमोराइज करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि आप फॉर्मूला याद करिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन फॉर्मूला जो है एग्जाम में बहुत कम ऐसा होता है कि फॉर्मूला आपके काम आए, क्योंकि जब आप कुछ मेमोराइज कर रहे हैं तो हो सकता है एग्जाम प्रेशर में वो मेमोरी आपके काम ही ना आए, आप मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो आपको, और ऐसा होता है जनरली कि मेमोरी फेल्स ड्यूरिंग द प्रेशर, राइट? बट जो कुछ आप देन एंड देयर देख रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं सीख रहे हैं, वो जल्दी होगा। अच्छा, मोर ओवर लॉजिक अप्रोच जो है ना, जो आपकी लॉजिकल अप्रोच है, वो लॉन्ग टर्म रिटेंशन में भी काम आएगी। आप रिलेट कर ले जाएंगे कि यार पहले मैंने ऐसा क्वेश्चंस किया था, तो पहले मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस में ये किया था, अब अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो वहां तक तो ठीक है, उसके आगे क्या करना होगा, क्या ये एक्स्ट्रा डेटा है, इस डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, राइट? तो ऑलवेज गाइस, जब आपकी लॉजिकल अप्रोच आप यूज करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म रिटेंशन में आपको काम आएगी। अच्छा, मोर ओवर आप ये भी समझिए कि यहां पे जो डेटा गिवन है, इस डेटा को इस क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, या जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन के साथ साथ आप ये भी सोचना शुरू करें कि ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए विच डेटा इज नीडेड, राइट? एंड जब आप उस डेटा को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि यार ये डेटा है, इसका ये यूज होना चाहिए, ये डेटा है, इसका ये यूज होना चाहिए। रादर देन यूजिंग एनी फॉर्मूला, यू जस्ट थिंक अबाउट इट एज अ लैंग्वेज, राइट? एंड यही हमारी क्लासेस में भी होता है। हम लोग जब आपको लगेगा कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे होते, वी जस्ट डू द कॉन्वर्सेशन। हमारी क्लास बिल्कुल डायलॉग्स की तरह होती है, हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं, ठीक है? एंड फ्रेंड्स, यू नो व्हाट, लॉजिकल अप्रोच की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो लॉजिकल है ना, जो लॉजिक है, लॉजिक चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो, लॉजिक वर्क्स फॉर एवरीवन, राइट? ओके, एनीवेज, आफ्टर दैट गाइस, मैं आपको बताऊं, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करिए एंड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड try to think differently. Start the thought behind that concept, guys. You know what? Every concept has a thought behind that. For example, if I talk about the gravity, right? So guys, gravity आपको सुनने में लगता होगा कि फिजिक्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसको पढ़ने के लिए आपको न्यूटन्स कांस्टेंट और पता नहीं क्या क्या वैल्यू, जी की वैल्यू पता होनी चाहिए और पता नहीं क्या क्या पता होना चाहिए। बट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, ये थॉट एक स्मॉल, पूरी की पूरी ग्रेविटी एक स्मॉल थॉट पे बेस्ड है। और वो थॉट क्या था? न्यूटन को ये थॉट आया कि यार ये एप्पल नीचे ही क्यों गिर गया, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, राइट? एक वेरी स्मॉल थॉट, एंड दिस थॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ ग्रेविटी, गाइस। तो इसी तरह से आप कोई भी फॉर्मूला पढ़ें तो उस फॉर्मूले के पीछे के थॉट पे फोकस करें, और उस थॉट से होते 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 उस फॉर्मूले पे आए, तो क्या होगा कि आपको हमेशा पता रहेगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे और ये कौन कौन से केसेस में यूज हो सकता है। रादर देन आप डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ें और क्वेश्चन देखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा करने से क्या होगा गाइस, आप सिर्फ उस टाइम तक तो हो सकता है क्वेश्चन कर पाए, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट आ गया और वो एग्जाम प्रेशर में, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए ट्राई टू थिंक अबाउट इट, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके पीछे का जो भी फॉर्मूला है या फॉर्मूले के पीछे का जो भी थॉट है उस पर काम करना शुरू करिए, राइट एवरीवन? एंड जो टॉपिक्स आपको फोकस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, डेटा सफिशिएंसी, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस को करना शुरू करिए। और जब भी आप क्वेश्चन करें तो क्वेश्चंस को लॉजिकल अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करें गाइस, क्योंकि देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने 10th क्लास में कर रखे हैं, 10th क्लास तक आपने पढ़ लिया था, लेकिन
गाइज स्कूल में जिस तरह से पढ़ाया जाता है और एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन करना है उसमें बहुत डिफरेंस है। बिकॉज लेट मी टेल यू कि क्वेश्चन तो एक 10th क्लास का स्टूडेंट भी सॉल्व कर देगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना समझदारी नहीं है गाइज एग्जाम में। आपकी विजडम कहां पे है? विजडम ये है कि आप उस क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करें और जितनी जल्दी हो सके, मतलब जितना फास्ट सॉल्व करें और जितना एक्यूरेटली सॉल्व करें। 10th क्लास का स्टूडेंट भी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, लेकिन वो उस तरह से नहीं कर पाएगा जिस तरह से आप करेंगे। और आपको कैसे करना है? आपको उसको सोचते हुए सॉल्व करना है, राइट? अच्छा, एंड गाइस आपकी अप्रोच बिल्ड करने के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं, जैसे कि हमारी सीसैट की बुक, आप उसको जरूर पढ़िए, राइट? एंड हमारे कुछ यूट्यूब पे फ्री क्लासेस दिए हुए हैं, उन क्लासेस को देखिए, ठीक है? और एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए गाइस अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने के लिए और अपनी एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है? ये बहुत जरूरी है, ठीक है? एंड गाइस ट्राई टू सी द लॉजिक बिहाइंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड बिहाइंड एवरी फॉर्मूला, ठीक है? आफ्टर दैट गाइस ये जब चीजें आप सीख रहे होंगे तो इनको पीवाईक्यूज में अप्लाई करना शुरू करिए। यूपीएससी के पीवाईक्यूज उठाइए 2011 से लेकर के 2020-25 तक, और जहां पे जब आप पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको दिखेगा कि यूपीएससी ने अपने पैटर्न्स को किस तरह से रिपीट किया है क्वेश्चंस में, क्योंकि वो अपने पैटर्न्स को रिपीट कर रहे होते हैं। सो गाइस डोंट वरी अबाउट इट। आप जितना भी पढ़ते हैं उसको अप्लाई जरूर करिए, उसके एप्लीकेशन पे जरूर फोकस करिए और यूपीएससी के क्वेश्चंस के पैटर्न्स पे फोकस करिए और उस टाइप के और क्वेश्चंस लगाइए, थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस लगाइए और किसी किसी टेस्ट सीरीज में ढूंढिए उस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहां पे मिल रहे हैं, राइट? उनको जरूर करिए और जितने केसेस आप सोच सकते हैं, मल्टीपल केसेस के, अच्छा इसमें अगर ये वेरिएशन हो जाए तो क्या होगा, ये वेरिएशन हो जाए तो क्या होगा, उस तरह से जरूर काम करिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि कोशिश करिए कि जो आप ट्रिक बेस्ड शॉर्टकट सीखते हैं ना, उनको अवॉइड करिएगा। उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन ये है कि आप ट्रिक्स सीखते क्यों? ट्रिक्स आप इसलिए सीखते हैं कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए या क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप लॉजिक्स पे फोकस करेंगे, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे क्वेश्चंस और उसके साथ साथ आप डेटा प्रोसेस करेंगे, तो हो सकता है क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए, सॉल्व हो जाए, और आप पेन सिर्फ इसलिए उठाएं कि आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना हो। गाइस ऐसा होता है, और ऐसा, लेकिन हाँ, ऐसा एक दिन में नहीं होगा, ऐसा होने के लिए टाइम लगेगा, और टाइम दीजिए गाइस। 1 घंटा डेली पढ़ना शुरू करिए सीसैट अभी से लेकर के एग्जाम तक। प्लीज पहले फाउंडेशन बिल्ड करिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, और फिर उसके बाद उसी प्रोसेस को रिपीट करते रहिए, राइट? अच्छा, इसके अलावा आप अपने समरी नोट्स बनाइए। समरी नोट्स जरूरी है गाइस आपको, जिससे पता हो कि इस टॉपिक में कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आप उसमें देखिए, ठीक है? और अगर आपको समरी नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे पास आइए, आई विल सिट विद यू एंड आई विल वर्क फॉर योर समरी नोट्स। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, राइट? ओके गाइस, तो चलिए, एंड एक बात और कहूंगा आपसे कि इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं तो उसको ये जरूर सोचा करिए कि इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम में कैसे करूंगा, ठीक? और एक चीज और कि एग्जाम में क्या मैं ये क्वेश्चन करूंगा भी कि नहीं करूंगा, ये भी बहुत जरूरी है गाइस। क्योंकि अभी तक आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई है, अभी तक आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसको करो, ठीक? तो हर एक क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करते हैं, बट एग्जाम में ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं। तो इन बात पे फोकस करिए गाइस, ठीक है? इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए, आफ्टर दैट गाइस, यू नो व्हाट, ट्राई टू प्रैक्टिस द डिसीजन मेकिंग थिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब यही है कि ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। राइट सिलेक्शन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ठीक? मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त आप क्वेश्चन देख रहे हो, मान लीजिए आपने शुरू का क्वेश्चन देखा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, थर्ड क्वेश्चन देखा, और हो सकता है आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, आपने थोड़ा सा टाइम दिया, नहीं सॉल्व हुआ, फिर आपने एक और क्वेश्चन देखा, आपने थोड़ा सा टाइम दिया, नहीं सॉल्व हुआ, फिर आपने एक और क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा टाइम दिया, नहीं सॉल्व हुआ। पता है गाइस, आप पैनिक में आ जाएंगे। लाइक शुरू का 10-12 मिनट्स आपने दे दिया एंड यू कुड नॉट सॉल्व इवन अ सिंगल क्वेश्चन। गाइस, एक बहुत ही ज्यादा पैनिक क्रिएट होगा और वो साइकोलॉजिकली आपके पूरे पेपर को इम्पैक्ट करेगा, ठीक? एंड उसी जगह अगर आपने मान लीजिए पेपर देखा, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, सेकंड पेज पे आइए, वहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, फिर थर्ड पेज पे आइए, वहां पे लेट से 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए, थर्ड पेज पे आइए, फोर्थ पे आइए, एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ऐसे करते करते पूरे पेपर को आप एक बार स्किम कर डालिए। हो सकता है कि आपको पूरे पेपर में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे मिले जो कि आप देखते ही सॉल्व कर सकते थे, राइट? तो गाइस, यू नो व्हाट, शुरू के 10 मिनट में आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे
और उसके बाद क्या होगा, आपको पूरे पेपर में 28 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब 28 करेक्ट करने हैं, एंड शुरू के 10 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आपके पास करीब 1 घंटा 50 मिनट रुका हुआ है, बचा हुआ है, और आपको उसमें करना कितना है, अराउंड 30 क्वेश्चन और करने हैं, जिसमें से आपके मैक्सिमम करेक्ट हो जाए। ठीक, तो गाइस बहुत आराम से आप पढ़िए, ठीक, लेकिन एक राइट अप्रोच बहुत जरूरी है, हाउ टू सेलेक्ट द राइट क्वेश्चन। तो गाइस यू नो व्हाट, ये आपकी जॉब प्रोफाइल का भी पार्ट है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, और इसी वजह से यूपीएससी का एग्जाम भी इस तरह से डिजाइंड है कि जहां पे आपको अपनी डिसीजन मेकिंग पे काम करना हो। ठीक है, तो एनीवेज गाइस यू नो व्हाट, सीसैट क्वांट इज व्हाट, सीसैट क्वांट इज राइट सिलेक्शन एंड टाइम मैनेजमेंट। बस इतने का ध्यान रखिए। जब आप राइट सिलेक्शन करेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा, तो गाइज यू नो व्हाट, जब आप सही क्वेश्चन उठाएंगे तो आपका क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली इनहांस हो जाएगी। ठीक, इसका ध्यान रखिए। एंड जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें तो आप अपने आप से पूछिए कि इज इट वर्थ सॉल्विंग, क्या ये क्वेश्चन करना भी है एग्जाम में या नहीं करना है। राइट, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। एंड सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, और एक इंट्यूशन डेवलप करिए कि कौन से क्वेश्चंस को छोड़ देना है, ये भी ध्यान रखिएगा इस। ओके, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड गाइस यू नो व्हाट, यू हैव टू रिवाइज स्मार्टली। ठीक, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अपनी एक समरी नोटबुक बनाइए जो कि जरूरी है, राइट, और उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स लिखिए। ठीक है, और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि एग्जाम में आप कौन से क्वेश्चंस करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है, सपोज दैट नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में फैक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, सपोज दैट। तो अब बहुत अच्छी बात तो ये है कि एग्जाम में फैक्टर्स के क्वेश्चन ना ही आए आपके लिए, राइट। लेकिन अगर एग्जाम में फैक्टर्स के क्वेश्चन दिखते हैं आपको, तो आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए। नंबर सिस्टम से मान लीजिए नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके सपोज दैट वो टॉपिक आपका स्ट्रांग है, प्राइम नंबर के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर है, प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। लेकिन सपोज दैट फैक्टर्स के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको एग्जाम में जाने से पहले पता होना चाहिए कि इस टॉपिक का पर्टिकुलर ये सब टॉपिक अगर आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। ठीक, तो चाहे जितना जैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको नहीं करेंगे प्लीज। तो गाइज एग्जाम में एक सेट स्ट्रैटेजी के साथ जाइए, एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा वहां पे। अगर आपने एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो आप ये मान के चलिए कि आपको अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठना पड़ेगा फिर। ठीक, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। एंड गाइज आप सबसे पहले अपनी एक समरी नोटबुक बनाइए। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट करिए, फिर उसके बाद हर एक टॉपिक का समरी नोटबुक बनाइए, उसको रिवाइज करिए, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए, फिर उसमें अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, और फिर उस पूरे प्रोसेस को रिपीट करते रहिए। ठीक है, ये जरूरी है। एंड सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के साथ साथ उनको सोचना शुरू करिए गाइस। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ लॉजिक्स की, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि सोचना कैसे है। ठीक, क्वेश्चन के साथ साथ आप उसको सोचना शुरू करिए। जैसे कि मान लीजिए अगेन, मान लीजिए कि एवरेज, अब मैं आपसे कहूं कि एवरेज क्या होता है गाइस, तो एवरेज इज व्हाट, एवरेज इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट वी हैव, दैट्स इट। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है कि सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा समथिंग समथिंग, नो। एवरेज क्या है, एवरेज इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट यू हैव, दैट्स इट। अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए कि 10 लोगों के बीच में आपको सबके पास बराबर बराबर रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने, तो क्या होगा, सबके रुपए पहले एक साथ इकट्ठे किए जाएंगे। ठीक है, उसको टोटल किया जाएगा, और फिर वो 10 लोग हैं तो 10 लोगों के बीच में वो बराबर, मतलब दैट नंबर वुड बी डिवाइडेड बाय 10। सो सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा is being derived from that thought that you have to do equal distribution among all the 10 members, right? तो गाइस क्वेश्चंस को ऐसे सोचना शुरू करिए, और उसके लिए आपको थॉट पता होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे का थॉट क्या है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है गाइस। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट गाइस, नाउ द टूल किट इज व्हाट, कैसे पढ़ना है फॉर्मूला फ्री। तो सबसे पहले तो हमारी जो बुक है, मैं अगेन आपको बोलूंगा। इसके बाद हमारे कुछ यूट्यूब पे फ्री सीसैट वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लीज उनको देखिए। उससे जो है आपकी फॉर्मूला फ्री अप्रोच बिल्ड होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो क्लासेस इसी तरह से ली गई हैं। ठीक, एंड इसके बाद एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए गाइस, आप हमारी टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। ठीक है, और पढ़ना शुरू करिए, और पर्सनलाइज गाइडेंस अगर हो सकता है तो वो बहुत अच्छी बात है, राइट। और यूपीएससी प्रीलिम्स तक ये सारे के सारे प्रोसेस करते रहिए करते रहिए करते रहिए गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट गाइस द फाइनल मैसेज इज, मैं आपको बता दूं अगेन, यू डोंट नीड फॉर्मूला, यू जस्ट नीड लॉजिक बिहाइंड दैट। दिस इज द फाइनल मैसेज। सो गाइस ट्रस्ट योर लॉजिक, एंड ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है।
आज से लेकर के प्लीज़ 1 आवर का शेड्यूल फिक्स करिए, पढ़ाई करिए एंड अपने रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ठीक है। समरी नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए, ठीक है। और ये प्रोसेस रिपीट करते रहिए, मॉक टेस्ट करिए, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, राइट एवरीवन। आई थिंक this is all about this video. And guys, you know what? Actually, CSAT is not about calculation. It's all about clarity, right? I repeat, CSAT is not about calculation. It's all about clarity, guys. Okay. So thank you, everyone. Thank you, guys.